have a very special guest, a founder, an entrepreneur, and CEO of Digital Optimized National Solutions. Here I welcome Mr. Praveen Soni, a student of Chandigarh University who has initiated his startup company in July 2019. Mr. Soni has launched his book, The Malang of Success. Recently, he was also inducted in India Book of Records for his special work in developing the Smart Farming IoT kit. So, I cordially invite you on stage to inspire us all. Thank you. Hello everyone. So I think introductions here already given a lot. So before starting this session, I'll have to inform you that the session is going about the entrepreneurship. So just I wanted to tell you that instead of making this event professional, I have to make it interesting and interactive. For that, just what I want from you, your side. Give your responses and ask questions as much as possible. I have to begin the first PPT about the entrepreneurship. Before starting, I want to know how many of you wanted to get the job once you pass out from the Chandigarh University. और बाकियों का क्या विचार है? आप लोग तो बोल सकते हो हिंदी इंग्लिश वॉटेवर यू वांट बांधो बना से किसका जी मैं ओके दैट्स गुड तो आप लोग की सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला इफ यू हैव एनी आइडिया बट डोंट हैव द गाइडेंस डोंट हैव द फंडिंग डॉट सिस्टम in place to help you. Okay? Coming forward. So the session is all about the learn, earn and learn. So I hope आप सब जानते होंगे learn, earn and what is the meaning of learn. Anyone? Okay. Anyone else? Good. आप बस आंसर कर दीजिए उससे क्या है हिंदी में इंग्लिश में जो आपको बोलना कोई नो प्रॉब्लम Strive for more. लाउड Strive for more. ओके गुड तो बोथ आंसर करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट वन इफ आई टॉक अबाउट द literacy rate and the second is the unemployment rate. When you will see the scenario, can you see or not? No? इसको यार मैं होता है हो सकता है क्या? So I can tell you the literacy rate of the India is about 69.1%. Whereas the unemployment rate is 9.6. The next thing comes in the scenario is the entrepreneurship rate. That is the 3.5. You can see the figures. People are educated, but the problem is they don't have the job. What is the problem behind it? Because we don't think about innovative. हम बस क्या चाहते हैं जब आप 12th पास करके कोई भी कॉलेज में आते हो कि जॉब चाहिए 90% एक्सेप्शन हो सकते हैं इसके अलावा हम ये नहीं सोचते हैं कि हम अपना खुद का लोगों को जॉब देंगे हम जॉब क्रिएट करेंगे ऐसा कोई सोच के नहीं आता है बट यू हैव द ड्रीम टू क्रिएट द जॉब फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर The solution. What is the solution to do to create the job?
या उस कंपनी की पहचान है। मेक योर ओन एफर्ट। अब वो एफर्ट होंगे कैसे? इसका एंटरप्रेन्योरशिप का कोई कोर्स तो है नहीं, तो इस यूनिवर्सिटी में जहाँ आप लोग हो, अलग यूनिवर्सिटी में होता है, लेकिन जहाँ पे आप यूनिवर्सिटी भी चेंज नहीं कर सकते हो, तो सोल्यूशन क्या है? पीबीआई का नाम सुना है किसी ने? क्या है फुल फॉर्म? ओके, एनीवन एल्स? देखो एक चीज में बहुत ओपनली बता दूं, कोई यहाँ जबरदस्ती तो नहीं बैठा है, क्योंकि जिस सेमिनार को अटेंड करने आए हो इसमें मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए, ठीक है? मुझे वो बंदे चाहिए जो जॉब क्रिएट कर सके, जो जॉब लेना चाहते हैं, वो नहीं चाहिए मुझे, ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो यू हैव टू लर्न हाउ यू कैन बिकम अ एंटरप्रेन्योर। हाँ, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट द पीबीआई। PBI is the platform where you can launch your startup. Startup और business दोनों डिफरेंस होता है कि सेम चीजें होती हैं? डिफरेंस है, कौन बोला? अगर हम बिजनेस करते हैं ना, वो होते हैं हम कोई भी को पहले से एग्जिस्टिंग आइडिया के साथ कर सकते हैं। स्टार्टअप आज एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, उसमें हमें इतना इनोवेटिव आइडिया देना होता है। स्टार्टअप इज समथिंग जो मतलब आगे तक एक्सप्लोर हो, खत्म ना हो। एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप में एक डिफरेंस होता है, अगर इनोवेटिव आइडिया लेकिन एक स्मॉल स्केल पे हम स्टार्ट करें, लेकिन वो एक्सप्लोर नहीं कर रहे, बढ़ नहीं रहा है, अगर वो हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पे जा रहा है, स्टार्टअप। Good. Just suppose my father have some stationery shop. Okay. Once he got old, then I started sitting on that stationery shop. This is the startup or the business? Business. Let's notice maybe business है startup. Business. Good. अगर मैंने कोई इनोवेटिव आइडिया सोचा है, कोई स्मार्ट फार्मिंग किट डेवलप की है, तो वो क्या है, स्टार्टअप या फिर बिजनेस? स्टार्टअप। तो अच्छी बात है, मतलब बिजनेस स्टार्टअप। तो तुम लोगों को बिजनेस नहीं करना है, ठीक है? तुम लोगों को स्टार्टअप करना है। तो बिजनेस जो पहले से वो अपने आप हो जाएगा। If your parents है वो someone else, okay? Because you need to think, कुछ नया सोचना है मार्केट में। That is the startup. Why should I do startup, not a job? बहुत सिंपल सा रीजन है। आप जॉब कहीं भी किसी कंपनी में करते हो, अपनी यूनिवर्सिटी पे जो स्टैटिस्टिक्स बोल उठा के देख लेना कि स्टार्टिंग होती है 3.5 लाख से और जाने के लिए 30 लाख और 32 लाख तक पैकेज चले जाते हैं। लेकिन जब आप बात करोगे 30 लाख में कितने गए, 20 लाख में कितने गए, 50 लाख में कितने गए, वो काउंटिंग ऑन फिंगर होती है, 5, 10, 15। ओके, बट जो मास स्टूडेंट होते हैं वो 3.5, 4.5 और 6.5 इसमें जाते हैं, ठीक है? अंडरस्टैंड द पॉइंट व्हाट आई वांट टू मेक। बट इन द स्टार्टअप यू डोंट गेट एनी मनी इनिशियली फॉर मिनिमम 2 years। अगर within 2 years you make the money, it means you are doing something extremely well. When you are doing startup, आपको ये जरूर सोचना है कि उसकी लाइफ कितनी है। आपने स्टार्टिंग में 2 साल में तो बना लिया 20 लाख या 50 लाख, उसके बाद क्या है उसका? First thing, don't chase the money. Okay? Coming to the second point. When you are in a company, you are the part of the big machine. एक मशीन होती है, उसमें बहुत से पार्ट होते हैं। कंप्यूटर का एग्जांपल ले लो, पीसी का, तो उसमें अकेला मॉनिटर कुछ नहीं करता है, सीपीयू कुछ नहीं करता है, कोई पार्ट से मिलकर चलती है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द स्टार्टअप, कोई एक बंदा स्टार्ट करेगा, तो स्टार्टअप में द लर्निंग यू विल गेट फ्रॉम स्क्रैच टू मेकिंग योर कंपनी एमएनसी कंपनी। वो चाहे कुछ भी हो,
टेल मी हु इज द फाउंडर ऑफ ओयो? इंडस आला, मिस्टर अग्रवाल. इंडस आला, ओला, तेज बोलो. देखो क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस का अगर आंसर करोगे हाँ या ना, तुम्हें लगेगा इंगेज हो इसमें. तीन पूछे मैंने, ओला, ओयो, इंटर्न सारा, ठीक है, फेसबुक ये पता होगा सबको. आपने बंदों के याद नहीं रखोगे. चलो देखते हैं आगे. एक और प्रॉब्लम जो आती है, 2 पॉइंट हो गए याद रखना. तीसरा पॉइंट फंडिंग. स्टार्टअप की फंडिंग कहां से लाए? ये मैं तो टियर 2 और टियर 3 से आता हूं. मैं इतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हूं, लेकिन मैंने जो आइडिया सोचा उसके लिए 5 लाख रुपए चाहिए. कहां से आए? नहीं, किसने बोला लोन? बहुत सही जवाब दिया उसने. पहला माइंड यही आता है बच्चों के, जो बच्चों के माइंड से हटाना है लोन देना. नहीं, वो उसका आंसर सही है जो उसने सोचा है, लेकिन इसकी सब्स्टिट्यूट है उसको पता नहीं. गवर्नमेंट फंड करती है 5 लाख 25 लाख 50 लाख, तो मैंने पता नहीं उसको अप्रोच कैसे करना. सॉल्यूशन बगल में ही है आपके. इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ठीक, बहुत अच्छी बात है. तीसरा, जगह चाहिए आपको. स्टार्टअप कहाँ करोगे? तो उसका नाम है इंक्यूबेशन सेंटर. जॉब में तो ऑफिस मिल गया, ठीक है, लेकिन वहां पे तुम क्या हो, एक एम्प्लॉय जाओगे, ठीक है. कितना भी प्रमोशन हो जाए ना, चांसेस है कोई नहीं बन सकता, ठीक है. एक एम्प्लॉय रहेगा, लेकिन जब तुम खुद स्टार्टअप करोगे तो मालिक करोगे, ठीक है. एक चौथा डिफरेंस था. कम्युनिकेशन. जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उनका आंसर आपके सामने है. इंटर्न साला कौन है? इंटर्न साला कौन है? साहू सब्जी वाले. और ओला में इसमें तुम देख रहे हो 4 मैंने पिक्चर्स चूज किए हैं. हर एक पिक्चर का ना सिग्निफिकेंस है, ठीक है. बताओ, बाबा जी जैसे लोग 50 साल हो, बंदा योगा करता था, ऐसे ही वो उसको मतलब आइडिया लाया कि कोई मार्केट अपने पास कर ली. तो सिंपल सा इसका आपके पास मैसेज है, देयर इज नो एज ऑफ द ऑनटरप्रेन्योर. पतंजलि का एग्जांपल है. हाँ, तो ये दूसरे बंदे ही है ना, कंपनी मार्केटिंग कर रहा हाँ, वो लेकिन फेस कौन है? फेस यही बंदा है. फाउंडर तो बालकृष्ण था ना. हाँ, फाउंडर हुआ, इस बात थोड़ा मिस्टेक है. ठीक है, फाउंडर नहीं है, ठीक है. फेस यही है बाबा जी, ये पता ही होगा, ठीक है. अरे इसमें आप में से अग्रवाल है कोई? एक अच्छी दुकान वाली आप लोग हो सकता है बच्चे को अंदर बनाए बाइक बोल हो जाओ, क्योंकि मैं आपको किसी ने चाहिए सकते हो फालतू लगेगा तो सही हो सकेगा. कुछ तो दम है लोगों में. दूसरी सिमिलरिटी, आप लोगों को इनकी स्टोरी पता है? स्पेस और जो सर्विस है, ये दोनों ने एकदम ऑन्टरप्रेन्योर नहीं बन गए. इन्होंने जो एजुकेशन अपनी की है ना कुछ टाइम के लिए, वो बाहर जाके किया है, और दोनों ने यूएस में पढ़ाई की है, और सर्विस के साइड सर्विस हिंदी में भी किया है, ठीक है. और तीसरा बंदा अपने जो भाग्य से वो आईआईटी का है. चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हितेश भाई जो है वो 12th पास होंगे. पता है आप लोगों को? ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की है, तो कम से कम हमको ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे. ना स्टेज ऑफ द स्टार्टअप, कौन कौन सी स्टेज आती है? सबसे पहली कौन सी है? आइडिया वैलिडेशन. मतलब
आइडियाज भी आपको आते हैं, देखो सुबह गायब हो जाते हैं, आते हैं ना आइडिया। ऐसा कोई बंदा नहीं जिसके माइंड में आइडिया नहीं है, लेकिन उस आइडिया को सॉल्यूशन में कैसे बदलना है ये इम्पोर्टेंट है। कैसे चेंज करें उस आइडिया को सॉल्यूशन में, क्योंकि आइडिया में तुमने सोचा ना उसको उसकी प्रॉब्लम से अटैच करो। आइडिया तो सोच लिया लेकिन तुम कहीं पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे अभी भी घूम रहे हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाए। प्रॉब्लम क्या थी कि होटल्स में जाके हमें वो सर्विस नहीं मिलती थी जो हमें एक्सपेक्ट करते थे। प्रॉब्लम क्या थी, इंटरेंशिप नहीं मिलती थी। तो पहले प्रॉब्लम को कनेक्ट करना है इससे जो आइडिया हमारे पास आते हैं, उसके बाद उसको देखना प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं। मैच करना इन द सेंस वो रियल लाइफ प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं या नहीं। जैसे मैंने सोच लिया मैंने मुझे डॉक्टर बनाना है, आपको सपने में आया, ठीक है, सुबह में बनाना स्टार्ट हो गया, बिना ये सोचे इसका फ्यूचर क्या है, क्या हुआ, बेटर ऑफ टाइम वेस्टेज ऑफ मनी। उसका फ्यूचर प्लान सोचना होता है अगले 5 साल तक। देन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर। अगला आता है सॉल्यूशन आउटलाइन फीचर्स। आउटलाइन फीचर्स को एक सिंपल सा वर्ड बोले कैनवास नाम सुना है, वो कैनवास बनाते हैं वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। इस कैनवास में क्या कम से कम 10 से 15 पॉइंट होते हैं, उनकी डिटेल स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज द कैनवास। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आज ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, इन द प्रेजेंट वर्ल्ड कोई भी ऐसा स्टार्टअप पॉसिबल है एज ए मेजॉरिटी जो विदाउट वेब ऐप और सॉफ्टवेयर के चल जाए? कोई भी तीनों में से एक, विदाउट एक पर्टिकुलर आईटी सिस्टम्स कनेक्टिविटी के बिना चल जाए, और कोई ऐसा स्टार्टअप बताओ? माइंड में भी आपकी ऐसा स्टार्टअप हो बिना आईटी कनेक्टिविटी से चल जाए? दूसरा बेनिफिट सीएससी आईटी वाले बंदों के लिए बेनिफिट है जब होगा जब आपको आता होगा डेवलपमेंट, तब। ये ऐसे ही बच्चे होते हैं इनको मतलब एक सिंपल है 4 साल हो जाते हैं हेलो वर्ल्ड नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट। मैं मिलवा दूंगा बहुत से बच्चे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये बेनिफिट को अगर आपको लेना है तो एक बेनिफिट बना दो, एकदम सीख लेना। आइडिया के बच्चे कितने हैं? क्या होती है कि सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर कितनी है? स्पेशली जो फर्स्ट ईयर वाले हैं ना यार, तुम लोगों को बहुत टाइम है। टीवीआई जो फर्स्ट ईयर वाले तुम लोग टीवीआई जाते हो, टीवीआई नाम सुना? टीवीआई नाम का ऐसा एक शब्द है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्लॉक 3 में टीवीआई से अलग किसी से पूछ लेना, कोई भी बता देगा। अगला आते हैं एमवीपी रिलीज। एमवीपी क्या होता है? MVP मोस्ट वैल्यूएबल एमवीपी को अगर दूसरे शब्दों में बोले तो वैल्यू प्रपोजिशन। जिसको हम बोलते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि आपका प्रोडक्ट में क्यों भेजूं या आपकी सर्विस हायर से आई ऑफ योर सर्विस। ओके, तो इन 5 फेजेस में कोई डाउट आना चाहिए। वैसे देखते हैं आपको आया नहीं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे तो बहुत आए थे। कोई किसी को कोई डाउट है या क्वेश्चन आया हो माइंड में? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फेज होते हैं 5 इनको समझना। चलो नेक्स्ट, जैसे बात आती है फंडिंग की। टू योर स्टार्टअप ये फंडिंग और नॉट, ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मेरा स्टार्टअप है मैंने फंडिंग नहीं की किसी से। मुझे स्टार्टिंग जैसे अगर कोई स्टार्टअप करना कितना फंडिंग एक्सपेक्टेड है? एक आइडिया कैसे बोल दूं? 100 रुपए 40 तेज बोलो
15 लाख और कोई है ऐसा कोई नहीं है जो बोल रहा है कि 10,000 में काम हो जाएगा। बंदे खाते हैं कोई यार। मैंने ना जब अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया तो मुझे जरूरत थी 1 लाख रुपए की, ठीक है। उसके बाद मुझे खुद डेवलपर था, उसके बाद मुझे 1 लाख रुपए चाहिए थे। तो मैंने कुछ लोगों को अप्रोच किया, तो एक सज्जन मुझसे बोलते हैं कि आप ना मुझे 11% शेयर दे दो तो मैं आपके लिए 12 लाख रुपए दे दूँ। तो उस दिन मैंने अपना ड्रीम बनाया कि अब मैं ना 1 लाख रुपए खुद कमा के देखूं। और फ्रीलांस किया यहाँ से 1 लाख रुपए आ गए। मेरा अगला ड्रीम, मेरा टारगेट था, मुझे जरूरत थी 5 लाख की। तो जो क्लाइंट्स मैंने बनाए थे उनसे बोला कि आप एक काम करो, आपके कुछ ना सगे संबंधी होंगे उनसे बोलो, उसमें आपका भी कुछ फिक्स कर देंगे। ऐसे चलते हैं बिजनेस, ठीक है। जो बंदा बिजनेसमैन होता है, कभी एक अंदर की बात बताया, उससे एक्सपेक्ट मत करना कि ऑनेस्ट होगा, ठीक है। तो कहने में अच्छी लगती है। ये 2 लोग होते हैं, बिजनेसमैन, दूसरे पॉलिटिशियन, ठीक है। तो उस टाइम पहले 5 लाख का ड्रीम देखा, तो मैं 5 लाख कहाँ से आए, तो वही मैंने पॉलिसी अपनाई कि आप मुझे क्लाइंट दो, मैं आपको कुछ कमीशन दूंगा। तो मैंने 5 लाख किए। सेम तरीके से चैलेंज आया 10 लाख का, ऐसे 10 लाख तक बन पहुंचे। तो 3-4 टाइप की होती है फंडिंग, पर एक मतलब नॉलेज के लिए बता देता हूँ। एक होता है सीड कैपिटल, जो कि मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि कितना चाहिए, ठीक है। तो इनिशियली एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए होता है, वो होता है सीड कैपिटल। टाइम बता दें कितना होगा? मैं एक बार आपको बता दूं आपको इससे पहले कि एक पहले मैं एक पीपीटी लूंगा एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है। दूसरा अपना स्टडी अब्रॉड वाला, इनके ड्रीम्स हैं। उसके बाद एक मैं आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस करवाऊंगा, जो कि मेरे कलीग हैं, अभी पेरिस में है प्रेजेंटली। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है जब अपने यहाँ 12 बजेंगे तो उनके यहाँ 7:30 बजेंगे, वहाँ बंद होते नहीं है इतनी जल्दी। तो आप लोगों के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो शायद आएंगे, 90% चांसेस है। तो जो भी वो 2 कंपनी चला रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में 6th रैंक कॉलेज की फाइनेंस में यूनिवर्सिटी है वो, ठीक है। और मैं बता तो 12 बजे वो आएंगे। उसके बाद 2 छोटी-छोटी पीपीटी और लूंगा मैं, एक डॉट्स का बता दूंगा क्या कहता है, और एक जो अपना स्मार्ट फार्मिंग का आइडिया है उस पर मैंने कैसे काम किया, ठीक है। ये अपना पूरा सेशन होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कुछ करना है तो सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर कुछ नहीं करना है, कहानी सुननी है, कथा बोलते हैं जानते होंगे, तो कुछ नहीं बोल हो गया आपको, ठीक है। अगला आता है अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज का मतलब होता है कि आपका इनिशियल टारगेट ये नहीं है कि आपने आज स्टार्टअप करके बोले हम सबसे पहले 1 करोड़ रुपए कमाएंगे, ठीक है। स्टार्टअप जो मैं पैसे बोलूंगा, पैसे के पैसे मत भागना। अगर स्टार्टअप करना है, अपने आप पैसा आएगा तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सॉल्यूशन दोनों कनेक्टेड हैं, पैसे लगते हैं। दूसरी चीज होता है घर वालों से गालियां खाना, रिलेटिव से गालियां खाना, प्रोफेसर से गालियां खाना, और जो आपके वेल विशर्स, सो कॉल्ड वेल विशर्स, वो क्रिटिसाइज करेंगे। ये बहुत नॉर्मल सा है, मतलब जैसे दिन में हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, ये ऐसे ही हो जाता है स्टार्टअप, इससे लोग करते हैं। लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे तो वही कहेंगे मैं तो उससे कहता था कि काम करो, आप करोगे सब, वही लोग बोलेंगे, ठीक है। अगला आते हैं अर्ली स्टेज। समझ गए कि जैसे आपने इनिशियल जो फंडिंग निकाली, उसको एक छोटा सा टारगेट बना लिया कि मुझे इसको 1 साल में कितना पहुंचाना है, उसको अर्ली स्टेज बोलते हैं, ठीक है। आगे की फंडिंग उठाने के लिए एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। वीसी क्या होता है, अपने बारे में छोड़ के, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप की लैंग्वेज है, वीसीज बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है। वेंचर का मतलब होता है क्या, जो बंदे रिस्क लेते हैं
और पैसे वाले होते हैं। चीजों में सबको देना, उनको समझा करो है क्या। जो बंदा बस सोचते हैं बंदा जो ये स्टार्टअप सही है अपने पैसे डाल दिए बिना उसकी ज्यादा फिजिबिलिटी देखते हुए, ठीक है। जो अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं ना उन्हें बोलते हैं कि वो रिस्क लेते हैं। Coming to the next, latest stage, acquisition and mergers. Stages, alliances, ठीक है। ये सिंपली कुछ नहीं alliances कि मान के चलो मेरा स्टार्टअप है, ये भाई बोलते हैं कि मैं आपके में 5 लाख इन्वेस्ट कर रहा, मुझे भी अपनी कंपनी में ले लो। Alliance बना दी, इन्होंने बोला तो उन्हें 3-4 लोगों ने बोला एक alliance बना दी। Okay, this is simple known as the strategic alliance. सोच समझ के कि मान के चलो इन्होंने बोला है कि मैं आपके स्टार्टअप में इतना इन्वेस्ट करूंगा और दिस इज विल बी माय रोल, आई विल एक्ट इन दिस दैट पर्टिकुलर रोल इन योर स्टार्टअप एंड दिस इज माय डेजिग्नेशन। एक स्ट्रेटजी के साथ हमने प्लान किया है। आईपीओ जान लो, इनिशियल पब्लिक सुनाई दे रहा है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हाँ, और इसका मतलब क्या होता है? जब कंपनी शेयर मार्केट पे लिस्ट होती है, फर्स्ट टाइम अपने आईपीओ निकालती है। अभी कोई निकाले अपने नहीं, ये भी एसबीआई कार्ड से निकाले ना रिसेंटली। तो ये आईपीओ का मैं बोल रहा ना, ये वाली स्लाइड पर इसको आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्या होती है चीजें, क्योंकि व्हेन यू आर इन द स्टार्टअप यू हैव एटलीस्ट थोड़ी की इन्फॉर्मेशन ये फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। कमिंग टू द नेक्स्ट, पब्लिक मार्केट। पब्लिक मार्केट सिंपल है बहुत सी, एक बार आप आ गए मार्केट में, उसके बाद कोई मार्केट को कैप्चर कैसे करना है। अब जैसे ओयो ने ओला ने मार्केट कैप्चर कर लिया, ठीक है। दूसरा एक मुझे याद आया एग्जांपल, ओयो और उबर दोनों कंपेयर किया है कभी? क्या लगा मतलब कंपेयर करने के बाद कंपनी क्या निकला उसका? ओला और उबर। बोलो अपने ड्राइवर्स वर्कर्स को सब बहुत ज्यादा पे करते हैं, बहुत ज्यादा पे करती है और उन्होंने बहुत ज्यादा लॉन लिया है। और जो दूसरी ऊपर है वो कम पे वो चाहती है कि ड्राइवर्स को हैवी पड़ जाए so that they cannot leave by network, इसी से कमा सकते हो, ठीक है। टेस्ट करिए, टेक्नोलॉजी टेस्ट। सेकंड पॉइंट ये है कि इंडिया में जितने भी इनिशियल स्टार्टअप होते हैं उनको इतनी फंडिंग नहीं मिलती, जो कॉपी होते हैं उनको ज्यादा मिलती है। जैसे बाहर ऊपर था, इंडिया में उठाया तुरंत फंडिंग। जो मैं पॉइंट निकालना चाहता था ना वो कॉपी वाला था जो भाई ने बोला, ठीक है। ऐसा नहीं है स्टार्टअप की मतलब नया ही हो, ठीक है। अगर तुम कॉपी भी करते हो ना किसी का तो सिंपल से आप बोलते हैं हिंदी में नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, ठीक है। बंदे ने कुछ नहीं किया है, किसका था? यूएसए का है ना, यूएसए वाले बंदे का। अपन ने क्या किया, उसको कॉपी कर दिया, लेकिन उसको प्लान ने अच्छी तरीके से किया कि उससे बेटर आगे निकल गया, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या नकल के लिए अकल चाहिए। टेक्निकली एक्सपर्ट ये कंपलसरी है ऑनलाइन होने के लिए, आइए आप ही बताओ। नो सर, ये कंपलसरी है? नो सर। टेक्निकली एक्सपर्ट होना कंपलसरी है? नो सर। जैसे आप बोलते हो मुझे लगेगा टेक्निकली एक्सपर्ट होना कंपलसरी नहीं, लेकिन अगर होते हो ना एडवांटेज पॉइंट है, बहुत आसानी से ग्रो कर जाओगे स्टार्टअप। और जो बोलते हैं ना फंडिंग चाहिए 10,000, तो 10,000 वाले भी 10,000, 1 लाख, 50 लाख उनको कुछ नहीं चाहिए मान के चलो स्टार्टिंग पेज में, अगर आप टेक्निकली एक्सपर्ट हो। और मैं इतना चाहता हूँ टेक्निकली एक्सपर्ट का मतलब वेब डेवलपमेंट आता हो, ठीक है, बाकी आप करवा लो, ठीक है। बहुत सी बात बता दूं, मोबाइल डेवलपमेंट में अगर आते हैं तो फ्लैट का नाम सुना है? आईलैंड, एक्सकोड और नेटवर्क,
ये सब ना क्रॉस प्लेटफॉर्म है। एंड्रॉइड का नाम सुना है? ऑब्वियसली नहीं होगा। एंड्रॉइड और आयोनिक जो है ना, ये अलग चीजें हैं। एंड्रॉइड जो बनाता है किसके लिए? एंड्रॉइड स्टूडियो, जो एंड्रॉइड मोबाइल के लिए, स्मार्टफोन जो हम चलाते हैं। लेकिन रिएक्ट जो पहला जो है ना, सिंबल पता होगा, पहला जो रिएक्ट नहीं तो दूसरा आयोनिक, तीसरा एक्सपोर्ट, चौथा फ्लटर। एक क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब हम ऐप एक बनाएंगे, कोड एक लिखेंगे, वही iOS में चल जाएगा और वही किसमें चल जाएगा? एंड्रॉइड में। फ्लटर का काम है। एक फ्लटर का काम है, ये नेटिव का भी सेम काम है। ये दोनों क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए। मैं टेक्निकली नहीं जाऊंगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट आती हो, एक बैकएंड लैंग्वेज सीख लो भाई, PHP ट्रेंड में है आजकल, ठीक है। मतलब आप टेक्निकली ऑन द बन गए, इतना आता है। ये आपके सामने फिगर्स हैं। मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले ये किया था कि डू यू नीड अ टेक्नोलॉजी टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर। या दूसरे शब्दों में बोले, कोई भी स्टार्टअप बिना टेक्नोलॉजी की सक्सेसफुल है नहीं। सक्सेसफुल तो स्टार्टिंग में बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑन मेजॉरिटी बोलोगे ना, जनरल व्यू में बोलोगे, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। हाँ, वो मैं ना बोलूंगा, जनरल व्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वो पॉइंट भाई से बोला, एक्सपर्ट नहीं कर पाओगे। आज की दुनिया में बात की है ना, सोशल मीडिया, क्या उसकी कोई टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है, ठीक है। वो है और ओला है, टेक्निकल है कि नॉन टेक्निकल? टेक्निकल सर्विस पे जाओ, सर्विस पे नॉन सर्विस समझे, वो एंगेजमेंट तो है टेक्नोलॉजी का, लेकिन अगर इनिशियल फेज में इसको बोला जाए ना, तो इसको सोचा होगा आइडिया, तो उसको नॉन टेक्निकल बोलेंगे। लेकिन जब टेक्निकल से स्टार्टअप पहले मैंने ऐप डेवलप की, उसके बाद में अप्रोच किया इसने नेक्स्ट नहीं, सर्विस को समझो, उसने ऐप डेवलप करना सर्विस नहीं है, ऐप तो तुम भी डेवलप कर लोगे। कोई उसने प्रॉब्लम मुझे सॉर्ट आउट नहीं की कि मैं घर से बुक करता हूँ, ये नहीं है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि मैं जब होटल में जाता था तो इतनी कम रेट में मुझे वो रूम प्रोवाइड नहीं होता था, वो सर्विस प्रोवाइड नहीं होती थी, ये था उसका ये। और की बात है ओला की, ओला है इतने सब बात, ठीक है। होटल का काम नहीं, उसको तो वो उसने सोचा ना कि मतलब जो लो बजट ट्रैवलर हैं उनको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, उसका सॉल्यूशन निकाल के लेके आया था पहली बार। हाँ, वही मैं बोलना चाहता हूँ कि उसने ना उसने सॉल्यूशन सोचा था कि बजट को देखते हुए, क्योंकि कोई भी मैं बताता हूँ, अगर तुम स्टार्टअप ऐप से करते हो, तुम ज़्यादा टाइम से हो जाते हो। मैंने पहला इसका पेज क्या बताया सबसे पहला क्या बताया? आइडियल पेज। मैंने ये नहीं बताया ऐप डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी। आइडिया पहले आइडिया प्रॉब्लम को कनेक्ट करो भाई, वो इम्पोर्टेंट है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, याद रखना। सर्च करने में गूगल है तुम्हारे पास, सर्च को जितना रिसर्च कर सको, ठीक है। एक जान बताने जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो जो पॉइंट आई वांट टू मेक दैट इज क्लियर। इन्वेस्टमेंट और नॉन टेक्निकल समझाता हूं। राइट टाइम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, जनरल कोई राइट टाइम है एंटरप्रेन्योरशिप का कि इस एज में है कि मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊं? हो सकता है कोई सही टाइम? नहीं हो सकता। ऑब्वियसली इसका आंसर नो ही होगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं, एग्जांपल आपने जानते हो, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी मैंने जो खुद की एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो डिफाइन किया है थोड़ा सा। बिफोर 20 इयर्स एंजॉय द लाइफ, चल मारो यार, टेंशन नहीं लो, पहले कुछ तो भी नहीं लेते होंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लो, लेकिन टेंशन तो वैसे भी कभी नहीं लेना है, मतलब 20 और 25 को जो फेज है ना, वर्क ऑन द डिफरेंट आइडिया। एक आइडिया फिक्स मत करो, नए लोगों से मिलो और नए आइडिया का सोचो, और स्पेशली उन लोगों से चैलेंज करो जितने स्टार्टअप हैं, ठीक है। 25 to 30 क्या करना है?
यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, कौन सी डोमेन में एडमिशन जो बोलती है 12th के बाद, कि चाचा ने बोल दिया आईटी कर लो, और छोटे चाचा ने बोल दिया इसी कर लो, ठीक है। तो ये ज़्यादा मतलब 25-30 की बात नहीं होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट होना है क्या है। देख कोई भी स्टार्टअप बना लो, उसको कॉन्सेंट्रेट करो, वो एक बार वैल्यू बना ले मार्केट में, देन यू हैव टू स्विच ऑन अनदर। अमेज़न एग्जांपल है, जैक मा का नाम सुना है? यस सर। जैक मा यस सर। अलीबाबा। कितने लोगों ने सुना है? उसने स्टार्टअप कब कितनी एज में स्टार्ट किया था? 30 की एज में, और वो जहाँ पे रहता था वो गाँव का ही था, घर का ही एक्चुअल जो उसका था नहीं, सांगो बोलते कि मुझे याद नहीं है उसका, ठीक है। तो वहाँ पे उसने किसके साथ स्टार्ट किया था? अपने स्टूडेंट्स के साथ। He was the guy who was rejected 22 times. If I am not wrong. तो यार रिजेक्ट होना बहुत अच्छी चीज लगती है। एक मैं छोटी सी अपनी भी स्टोरी बताऊंगा रिजेक्शन की, ठीक है? आपको जैसे 35 to 45. Find your substitute. They are important. और substitute किसको देखोगे? कैसे बंदों को substitute देखोगे? तो ये लो, मेरे पास बहुत से बंदे आते हैं, मैं केवल 3 चीजें पूछता हूँ उनसे। पहला डेडिकेशन, दूसरा डिसिप्लिन, तीसरा पंक्चुअलिटी। कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये 3 चीजें मैंने बताई, सुनिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो फाउंडर होता है उसको करना चाहिए, उसको जो एक्सपेक्ट कर सकता है उसके टीम मेंबर्स और एम्प्लॉइज को, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, आपके साथ जो भी काम करते हैं उनको कभी एम्प्लॉय मत बोलो, बोल सकते हो उनको फील मत करो कि भैया वो आपके एम्प्लॉय है, स्पेशली स्टार्टअप वाले बंदे, हमेशा उनके फैमिली मेंबर बोलो, ठीक है। इतना तो बोलने को है, ठीक है। सिंपल सी द पॉइंट है कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं ना उनका रिस्पेक्ट करो, क्योंकि उनकी वजह से आप हो, वो आपकी वजह से नहीं, कि उनको पता नहीं होता है। ये क्योंकि आप बताओ ये जो आते हैं ना मार्कशीट IBM वगैरह, आपने जाकर किससे काम कराया? इनकी तो कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना कि पॉपुलेशन की वजह से तो ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। इसका भी जब मैं एफर्ट वाली उस पर आपको मैं बताऊंगा कि एक्चुअली वहां पे क्या होता है। अगला है 45 to 60, एंजॉय द लाइफ ऑन द बीचेस, ठीक है। आपको एंजॉयमेंट बता रहे हैं, ये जो कैंपस क्या जाते हैं जाने वाले, कभी पेरिस यूके जाके लंदन में जाके देखो, वहां पे होता है विजय माल्या का एग्जांपल भाई, चलो एक्सेप्शंस होते हैं, कोई बात नहीं। कैंपस लाइफ में बस जस्ट होता है एंजॉयमेंट, जो आपको करना है वो कर सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, ठीक है भाई। कैंपस में आते हैं की पार्टनर्स देखो यार, सबसे पहले अगर तुम्हें कोई बड़ा स्टार्टअप है, इसको मैं ना थोड़ा शॉर्ट में जाने जल्दी, ठीक है। टाइम कितना हो गया? मुझे इसको ना 35-40 तक फिनिश करना है, 10-15 मिनट। की पार्टनर अपने पार्टनर देखने एक्टिविटीज क्या क्या करता है बंदा, उसको ना ले जाना अच्छे से, एक फोटो खींच लो या फिर इंटरनेट पर सर्च करना। अगर किसी का कोई आइडिया है ना तो इसको यूज करना, सबसे पहले एक कैनवस पे अप्लाई करना, ठीक है। कि रिसोर्सेज कहां से आएंगे, रिसोर्स कहां से आएंगे आपके पास? कॉस्ट स्ट्रक्चर का मतलब है कि इसकी फंडिंग कहां से उठाओगे, अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो जरूरत नहीं। रिवेन्यू स्ट्रीम्स, रिवेन्यू प्रॉफिट में डिफरेंस समझते हो? समझते हो? अगर बस कॉमन सेंस क्वेश्चन इसके आंसर देने की जरूरत है। मैं रिवेन्यू की बात कर रहा हूं, स्टार्टअप का ना रिवेन्यू पे फोकस करना है, प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना है इनिशियली, क्योंकि
सजेस्ट कर रही है, आप पैसे सजेस्ट नहीं क्या करेंगे। प्रॉफिट मतलब यू आर बिकमिंग अ रिच पर्सन, और रेवेन्यू मतलब योर कंपनी इज ग्रोइंग। तो देख लेना स्टार्टिंग में खुद को ग्रो करना है या कंपनी, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट चैनल्स। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसको कैसे चैनल और सोर्सेज लगभग एक ही चीज है, ठीक है। कस्टमर रिसोर्सेज, वैल्यू प्रोपोजिशन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कस्टमर रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडिया में बोलते भी हैं कि ग्राहक, जैसे बोलते हैं ना, कस्टमर इज लाइक अ गॉड, ग्राहक भगवान स्वरूप होता है, क्योंकि ही इज द वन हु इज गोइंग टू गिव यू। जितनी बड़ी कंपनी है ना, वो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करती है मार्केटिंग में। क्यों करती है? क्योंकि उन्हें अप्रोच करती है। जबकि ये जितने भी है ना, ओला देख लो या फिर ओला एनीथिंग, ठीक है, वो एक तो फीडबैक देते हैं ना लास्ट में आपको मेल के थ्रू, तो लेते हैं, कॉल भी करते हैं। अगर आप 8-10 साल पहले जाओगे ना, दे डोंट यूज टू कॉल यू, ठीक है, सर्विस अच्छी है तो ठीक है, आपने पैसे दी, उन्हें सर्विस दी, लेकिन नाउ दे केयर अबाउट यू कि whether you will go at that particular place again or not, you will buy their services or not second time। तो हम लोग जो प्लान करते हैं ना, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप को वैल्यू प्रोपोजिशन मैंने पहले बता चुका हूँ, यूनिक सेलिंग पॉइंट। नेक्स्ट स्टार्टअप इन्फ्लुएंस। आजकल कौन से स्टार्टअप चल रहे हैं? मोस्टली बहुत सिंपल सा होता है, मैंने एक टेक्नोलॉजी बनाई, प्लेटफॉर्म दिया, ठीक है, यहाँ से कस्टमर लाया और यहाँ से सर्विस प्रोवाइड, दोनों कनेक्ट कर दिया। रैंडमली कोई भी स्टार्टअप उठा के देख लो, अभी करंटली जो ग्रो कर रहे हैं उन्होंने यही काम किया, कुछ नहीं किया। तो जो करंट सिनेरियो है ना स्टार्टअप का, जो टेक्निकल स्टूडेंट है ना, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगले 10 साल मिनिमम, जब तक कोई नया एवोल्यूशन नहीं आता। इसका एग्जांपल देने की जरूरत है मुझे, मैं बहुत देर से एग्जांपल ही दे रहा हूँ, कोई भी एग्जांपल देख लो आप। यहाँ पे मैंने लगाया भी है, एक फूड पांडा है, जोमेटो है, उबर ईट्स है, ये तो एक ही उसमें उबर डायरेक्शन है। आईवन, एक आईवन क्लब भी है ना, हाँ, वो भी सेम चीज कर रहा है। और जो हमारा स्टार्टअप है डिजिटल सिस्टम, वो भी सेम चीज करता है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को सोचो कि हम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसमें वी हैव टू कनेक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड द कस्टमर, तो ये करना बहुत आसान है, ठीक है। What you can do, चलो मान लिया फाउंडर बन गए, कोई कंपनी खोली, 90% स्टार्टअप इन इंडिया शट डाउन विद इन 2 years, अब बचे 10%, नियर अबाउट 5%, नियर अबाउट shut down in next 3 years, क्या बोले, टोटल 5 years, 2 + 3, ठीक है। और जो चला रहे हैं ना वो इंडिया को, 3 पॉइंट कितना बोला था स्टार्टिंग में, याद नहीं, 3 पॉइंट समथिंग आप लोगों को याद है, जो भी था, वो इंडिया को चलाते हैं वो लोग। तो आपको क्या आना चाहिए स्टार्टअप, अगर आप फाउंडर बन गए, अगर आपको इतना स्टार्टअप शट डाउन नहीं करना है, ये तो पहले देख लो, मैंने स्टार्टिंग में 10 आईडीएम हम लोग, केवल एक ही कंडीशन पॉसिबल है, डेडिकेशन, डिसेंटनेस, पंक्चुअलिटी, रिलायबिलिटी। मैं डिफाइन कर दूं विद एग्जांपल। डेडिकेशन का सिंपल सा मतलब है, ऑफिस में अगर आप पहले नहीं पहुंचोगे तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपके साथी आपसे पहले आएंगे, आपके टाइम पे आएंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी डिसेंटनेस,
you have to behave decent way. Not only with the members working in your startup, but with customers also. Third, punctuality. वही आ गया टाइम. Punctuality डेडिकेशन को अलग करना थोड़ा सा. Punctuality आ जाएगा टाइमली पहुंचना. डेडिकेशन आ जाएगा कि आपके पास पहली प्रायोरिटी कुछ भी हो दुनिया में स्टार्टअप है. XYZ. एक और बताते हैं एग्जाम्पल. एक 22-23 साल का लड़का जो कि क्रिकेट खेल रहा था. आई डोंट नो इंडिया में था या फिर अब्रॉड में था. ठीक है. His father got expired. He played next day. He was playing the test match. He played next day continue. Don't come back immediately for the funeral ceremony for his father. उसके फादर ने वेट किया. अगले दिन जब वो वापस आया तब जो भी होती है उनकी सेरेमनी वो कंटिन्यू हुई. उसका नाम पता है? विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था. ऑस्ट्रेलिया में बताया. ठीक है. तो इसको क्या है? इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट नहीं है विराट कोहली है. इम्पोर्टेंट ये है उसका डेडिकेशन. यार बहुत डेडिकेशन था उसको एसएमएस देने के लिए. ये बोलते ना बैंक से कोई नहीं होता. नहीं उसका डेडिकेशन किसके लिए थी? क्रिकेट के लिए. आप जो भी स्टार्टअप जो भी कोई भी काम करो सक्सेस होना है तो रिलायबल इन द सेंस अगर जो कमिट किया है ना उसको कमिट पूरा करना है. इसके साथ वही चीज आ जाती है जो भी आपकी कनेक्टेड है स्टार्टअप. आपकी प्रॉब्लम कुछ भी हो अगर बंदे को सैलरी पे करना है तो यू हैव टू पे. चाहे फिर लॉन लो या कुछ भी करो आप. बिकॉज ही इज पेशेंट इन दिस वर्ल्ड to bear expenses just because of you. आप पे डिपेंड है वो. इसको बोलते हैं liability. What you can do. 3 skills बहुत इम्पोर्टेंट है. मैनेजमेंट करना आना चाहिए. अपने डायरेक्टर्स हैं जो टेक्निकल थोड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए. और तीसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ये वाले फोकस करना है सबसे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ये आपकी कंपनी को ग्रो करेगी, एक्सपेंड करेगी. नई चीजें लाओगे. नेक्स्ट अब आती है कि देखो ब्रांडिंग की बात. अपनी कंपनी को ब्रांड कैसे करना है. बहुत सिंपल तरीके हैं. एक अमेज़न हो गया, आईएसओ हो गया. ठीक है. इसके मीडिया हो गया. बेटर मुझे ना एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है. एमएसएमई नाम सुना है. आईएसओ नाम सुना है. नीति आयोग नाम सुना है. तीनों के सुना है आप लोगों ने. इन तीनों का फुल फॉर्म कौन बताएगा? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमई. एमएसएमई का मतलब मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज. ठीक है. आईएसओ तीनों का बताओ. तीनों का कौन बताएगा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. इसको मैंने कुछ ना बुद्धिजीवी का आता है ना कि बात बुद्धिजीवी जो भी बताएगा हमें उसको मैं वो ऐसे गिफ्ट दूंगा. और पता मैंने स्लाइड पीछे क्यों किया भाई ये क्योंकि इसका आंसर लिखे थे. चलो नहीं किसी को नहीं पता. तीसरा कौन सा? नीति आयोग. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. एक तीनों बताओ भाई. एक पता है. चलो कोई भी जिसको तीनों आते हो नाम बता दो. कोई टेंशन नहीं. देखो आप आते हैं किसी को तीनों नहीं अभी भी नहीं पता किसी को. नहीं क्या बोल तो दिए तीनों. बता सकता है कोई? आगे चलो नेक्स्ट. तो ये सर्टिफिकेशन है ना आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब सर्टिफाइड होते जाते हो स्टैंडर्ड आप ग्लोबली काम कर रहे हो. इसका ठीक है.
ISO से स्टार्टअप दूसरा MSN है, याद रखना इस बात मैं बता दूंगा आगे। स्किल इंडिया these are the except ISO these नीति आयोग 5 होगा except ISO these all four are the initiative taken by the government of India just to support and incubate the startups. यही जो चांस इनमें से you will get the funding, 100 करोड़ रुपए से ठीक है? 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है, ठीक है 100 करोड़ आपको 3 You need to prove your mettle. इनका आपको जानते हो? कौन? पहला कौन है? हैं? दूसरा? तीसरा? मतलब जान दो आप लोग। The point is these are the people already with their effort and put their mettle whatsoever. अगर मैं दुकानदार ने सिंपल सा डिजाइन किया था मैदान में अपने कॉलेज के लिए नहीं किया था, इसका नाम है प्लेसमेंट। सचिन जी 70 साल का लड़का था जो कि खेलते खेलते ऐसी बॉल लगी कि उसको ब्लीडिंग हो गई, वो बंदा वापस नहीं गया और सिंपल कहो कि बोलता है मैं खेलेगा। तब उसको पता होगा ट्रम्प भी आया था कुछ दिन पहले, तो उसने सचिन का नाम दिया था, बहुत से नाम दिए थे, सचिन होने से भी इसका वो ले नहीं पाया था। ठीक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसको जानते से बंदे ने बहुत मेहनत की आपने आए। लास्ट बट नॉट लीस्ट इलॉन मस्क ने पता है अपनी खुद की स्पेस एक्स कंपनी बनाई है। तो बोलना बहुत आसान है लेकिन पूरी लाइफ लग जाती है बंदे को ना। बंदा किसको चैलेंज करना ना साथ यार, मुझे ऐसा लगा आप बात कर रहे ना तो आप कंसंट्रेट कर लो। अगर जहां भी लगता है बोल रहे हो तो आई विल स्टॉप देयर, दिस पीपल विल मेक सम इवेंट उधर यू कैन एंगेज। हम लोगों ने इवेंट भी प्लान किए, ठीक है नेक्स्ट। लेकिन मैं ये चाहता हूँ ना आपका मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए पूरे इवेंट जबरदस्ती। आप गवर्नमेंट सपोर्ट एंटरप्रेन्योर जब स्टार्टअप में इंडिया में जब आप रजिस्टर कर देते हो ना अकेडमी में जाते हो रिकॉग्निशन बोलते हैं। तो सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टार्टअप पेटेंट वगैरह होते हैं, टैक्स एग्जेम्पशन होते हैं। ये केवल मैं सिंपल सा आपको बताने का है यहाँ पे यू हैव टू गो विजिट स्टार्टअप की वेबसाइट। बाकी ये तो आप पढ़ लोगे, इसमें लिखने कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीति आयोग कैसे हेल्प करता है इंक्यूबेशन सेंटर बनाने में। इंक्यूबेशन सेंटर कैसे हेल्प करते हैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग देने में। जितने ज्यादा हो सके ना कंपटीशंस में जाओ, वहां पे ना you will come to know how other people are approaching the thing। भाई ये हेजिटेशन होता है ना इसको बोलने का, वो भी निकल जाता है। But you have to present your idea. Then people give you the counter questions. तो जितने अगर कोई बंदा एक someone is creating problem or you can say are bringing the next new startup. He is the real person who wants to appreciate you. But he is asking that problem which in future other people are going to face. So focus the critics who is going to criticize you. कॉम्पिटिशंस में बहुत हेल्प होती है। तो जो लोन की बात होती है, लोन मुद्रा ये लोन उनका जो बताऊं हमारे एमपी का मुझे बेसिकली तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नाम से एक है इनकी क्या बोलती है योजना, ठीक है। उसमें कितना सिंपल सा फंडा उन्होंने किया है, वो गवर्नमेंट कहती है आई विल गिव यू 10 lakhs, ठीक है। किसी को चाहिए तो 10 लाख स्टार्टअप के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने 10 लाख दे दिए। वो कहती है 5 साल बाद आप मुझे कितना वापस करोगे? 12 नहीं 12.5 लाख। बेनिफिट हुआ ना कुछ बताओ? आया ना बोलो तो नहीं होती? हाँ हुआ। कितने लोगों को हुआ? 5 लाख लोगों को हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं
अवेलेबल है, हम आपको सब्सिडी दे देंगे, हम आपको वापस कर देंगे, क्योंकि आपने जॉब क्रिएट की है। आपने कितना वापस किया? 10 लाख। दिया कितना था? 10 लाख। अच्छी योजना है हमें, पता था आपको? ये सर पता था। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है? तो ये ना कौन कौन सी स्कीम्स हैं ये आपको नो अबाउट है, ठीक है? बस इंक्लूजन सेंटर में बहुत से ना आपको फंडिंग मिल जाती है और बहुत से कंपटीशन में वहाँ पर प्राइज होती है, तो आप जीत के आओ वो एज इन्वेस्टमेंट कर लो। स्टार्टअप चलाने के बहुत से तरीके हैं, पर ना चलाने के केवल एक एसपीडी। हाँ, जस्ट एक्सप्लोर यार सबसे अच्छा तरीका है ना स्टार्टअप करने का, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म मैंने नहीं देखा, पता होना चाहिए, ठीक है? बीएसडब्ल्यू जाओ, मैनेजमेंट सीख लो वहाँ पे कि मैनेज कैसे करना है चाहिए। अब सबसे अच्छे मैनेजमेंट सीख सकते हो बीएसडब्ल्यू से। ईबीआई तो बात ही अलग है। यूसीआरडी नाम सुना? यूसीआरडी का यूनिवर्सिटी में ही अपना यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च पार्ट सीख सकते हो। वहाँ पे एक मशीनें लाभ होगी, एक मशीन तो शायद बंद करोगी वहाँ पे, ठीक है? सीख नहीं सकते तो देख तो सकते हो कि ये मशीनें भी होती हैं, चलते कैसे हैं। अगला है इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस भी यूनिवर्सिटी में ही है अपना, पता है? आई यूनिवर्सिटी की हेड है, तो आप वहाँ से अब्रॉड में कैसे काम होता है वो सीख सकते हो। अगला आता है डीसीपीडी। डीसीपीडी क्या है? डीसीपीडी डीसीडी बोलते शरीफ सर जानते होंगे शायद आप लोग, ठीक है? तो उसमें क्या है, आपके पास ना कंपनी से टाई अप हो सकते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए आते हैं बेसिकली, वही डिपार्टमेंट देखता है, तो आप कंपनी और कैसे काम करती है उनको पता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ईमेल का तुमने बता ही दिया, ठीक है? पूरा एक तो देते ही है। आप जो अप्रोच करते हो ना एम्प्लॉइज को, आपको ईसीयू में बहुत अच्छे से मिल सकता है। लॉ वाले बंदे मिल जाएंगे, ठीक है? फाइनेंस वाले, एमबीए वाले मिल जाएंगे, बीसीए, बीबीए, तो आपको क्यों कहीं जाना हायर करने के लिए? मैं तो अपनी कंपनी सीयू के बच्चों से चलाता हूँ। 75% टैक्स पर एक सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स पर मत करना कभी किसी को। अगर किसी से काम लेते हो 1 या 2 महीने आप उसको ट्रेनिंग पीरियड में रख सकते हो, उसके बाद उसको पे करना स्टार्ट करो। वो पे चाहे 100 रुपीज करो या 1000 करो या 1500 करो या फिर 50,000 करो, लेकिन पे करो उसको उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग, जितना वो डिजर्व करे। सिंपल सा फंडा है। अगर नहीं वो नहीं करता डिजर्व तो उससे बोल दो इस कर लो, सिंपल सी बात है। लेकिन क्योंकि आपको जो रूल्स है ना उन्हें ब्रेक मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। नेक्स्ट फाउंडर्स का दूसरा होता है कि आपका डायरेक्टर्स देखना है कंपनी की कौन बनाना है, को फाउंडर किसको बनाना है। हमेशा याद रखना फाउंडर की ड्यूटी है को फाउंडर डायरेक्टर से अच्छी होनी चाहिए। उससे अच्छे नहीं हो तो तुमने क्या देखा, तुमने क्या सीखा? उससे अच्छे होने चाहिए, उसको फाउंडर डायरेक्टर, ठीक? टीम मैनेजमेंट में मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ये। नेक्स्ट मोस्ट फेवरेट डोमेन फॉर द स्टार्टअप्स, जो कोई भी अच्छा डोमेन हो, लेकिन जो मुझे लगते हैं आजकल हेल्थ चल रहा सबसे ज्यादा। हेल्थ का आप स्टार्टअप कर दो फिर नहीं हो सकता, फूड पे कर दो फिर नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, सबसे ज्यादा, ठीक है? और इसके अलावा कौन से हैं? फाइनेंस हो गया, टेक्नोलॉजी पे कर दो। ऐसा मतलब आगे अगले 10 साल तो टेक्नोलॉजी आने वाली है बहुत अच्छे से, नए नए तरीके आएंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी। एजुकेशन पे कर दो। ये मतलब ये देखो नीड किया है लोगों की, एजुकेशन की बिना हो सकती दुनिया नहीं चल सकती। हेल्थ की बिना पहला सुख निरोगी का है, कुछ भी हो जाए बंदा पैसे लाएगा आपके पास, कहाँ से लाएगा नहीं पता। हर एक माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, बंदा पैसे लाएगा, ठीक है? ये मतलब कोड में है, इसमें सोच जितना हो सके। और स्टार्टअप किससे होता है? सबसे ऊपर वो लॉजिक देगी, देखिए सोचने से, जितना ज्यादा
सोचोगे, अच्छा आप में से कोई ऐसा बंदा जिसको फिजिक्स अच्छी लगती हो? मैंने केवल इसलिए पूछा, ऐसा कुछ नहीं है फिजिक्स वाले कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो फिजिक्स में अच्छे होते हैं ना बच्चे, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है? क्योंकि वो ना उसमें पता है कौन कौन से फोर्स लगते हैं, तो उसे हमें दिखते नहीं है। फिजिक्स में कभी किसी ने देखा है? नहीं, फिजिक्स वाले बंदों को दिखता है, तभी वो सॉल्व कर पाते हैं। तो उनका ना इमेजिन पावर, थिंकिंग पावर अच्छा होता है। लास्ट में लगी ऑब्जेक्ट सोसाइटी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, जो मैं भी स्टार्टअप कर रहा हूँ उसमें एक है डॉट्स प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है स्मार्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजी जो फार्मिंग एग्रीकल्चर में उठाया है, तीसरा इग्नाइटेड वेजेस आईटी सॉल्यूशंस का उठाया है। जो डॉट्स है वो पहले मैंने तीनों को कंबाइन करके रखा था, अब मैंने सेपरेट समाज की जैसी ग्रोथ होने लगी अलग नहीं, ठीक है? अब डॉट्स में मैंने एजुकेशन सारी प्रॉब्लम्स कवर कर दी है। पर मैं फाउंडेशन यू हैव टू गिव जस्ट समथिंग टू सोसाइटी व्हाट वो दैट दे यूज्ड टू फंड फॉर मेनी एनजीओज। तो मैंने बोला किसी और एनजीओ को देने से अच्छा है कि खुद ही एनजीओ ओपन कर। मैंने खुद का एनजीओ भी ओपन किया जिसका नाम है प्राइवेट फाउंडेशन एजुकेशन सोसाइटी, और मुझे जो लगा कि मैं एजुकेशन में कुछ कर सकता हूँ, तो मैं बच्चों को ना एक मतलब ड्रीम है जो वाइज काम करता है उसको फ्री में करना। इम्पॉसिबल नहीं मतलब सोचा इसके लिए जो पैसे वाले बंदे हैं उनके लिए नहीं है। पैसे वाले जो मतलब मेट्रो सिटी में रहते हैं या दूसरी भाषा में बोलूं जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए टियर 2 और टियर 3 में स्पेशली। अब मान के चलो आप सीयू में हो, सीयू आप जानते हो एक छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके अंदर डेडिकेशन है, ठीक है, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, वो कहां से आए? तो उसका सीधा मकसद है कैरियर डेवलपमेंट हब। हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी बताएंगे। इस लेक्चर के बाद भी आप बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं बहुत सी चीजें बता दी जो नहीं सीखने की मिली, और कोई ना कोई एक ना एक नई चीज सीख के जाएगा, इतना मेरा कमिटमेंट है आपसे, ठीक है? नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। इस स्लाइड प्रोग्रेस होती है, क्वेश्चन आंसर्स कोई आने चाहिए आप लोगों के।